Hello students, welcome to the online class. This is the first part of the chapter, study of the first element, hydrogen. In this part, we are going to cover all these topics. First of all, about hydrogen, then resemblance with alkali metals, resemblance with halogens, discovery and occurrence, preparation of hydrogen, and lastly, hydrogen from acids and alkalis. So let's start first of all about hydrogen. In this slide, we are going to study about hydrogen. Okay. So hydrogen is the first element in the periodic table and its atomic number is 1. We denote the hydrogen with the capital letter, that is H. It belongs to the first group and first period of the periodic table. In the nucleus of hydrogen contains one electron and one proton. Its position is still not fixed because it has some properties which are resembling with the alkali metals, and there are some properties which are resembling with halogens. That is why its position is not fixed. Sometimes in periodic tables it is shown with alkali metals, and sometimes in the periodic table it is shown with the halogens. Okay, it is the lightest gas. Hydrogen is the lightest gas, and which is colorless and odorless, means it doesn't have any color or nor any smell. Okay, it burns with a pop sound. When we used to burn the hydrogen gas, a pop sound comes out. एक पॉप की साउंड बाहर आती है जिससे हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर गैस क्या है, हाइड्रोजन है. ओके, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया था. सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने मेटल को एसिड के साथ में रिएक्ट किया था जिससे कि एक गैस रिलीज हुई थी, और उस गैस को उन्होंने हाइड्रोजन, उस समय नाम नहीं दिया था, पर वो गैस जो थी वो आगे चल करके हाइड्रोजन कहलाई थी, हाइड्रोजन के नाम से जानी गई थी. ओके, एंटोनी लेविसन ने सबसे पहले उस गैस को हाइड्रोजन नाम दिया था, क्योंकि जब उस गैस को उन्होंने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, जो गैस हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवर की थी, उस गैस को जब उन्होंने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो उसमें से वाटर का फॉर्मेशन हुआ था. ठीक है ना. तो जैसे ही वाटर का फॉर्मेशन हुआ तो एंटोनियो लेविसन ने उसको नाम दे दिया हाइड्रोजन, क्योंकि ग्रीक में हाइड्रोजन का मतलब होता है वाटर फॉर्मर. तो जो वाटर फॉर्म करता है उसे हम हाइड्रोजन कहते हैं ग्रीक में. इसीलिए वो गैस क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर दे रही थी, वाटर फॉर्म कर रही थी, इसलिए उन्होंने उस गैस को नाम दे दिया हाइड्रोजन का. ओके, एंड इसी जो हेनरी कैवेंडिश के एक्सपेरिमेंट को रॉबर्ट बॉयल ने वापस फिर से रीडिस्कवर किया था. उन्होंने भी मेटल और एसिड को रिएक्ट करके एक गैस रिलीज़ हुई थी. तब उन्होंने बताया था कि जो ये गैस है ये क्योंकि बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं तो इसमें डिफरेंस क्या था, इससे पहले भी कई गैसेस रिलीज़ हो चुकी थी, तो उन्होंने बताया था कि ये गैस जो होती है पॉप साउंड के साथ में निकलती है, विच इज़ कंबस्टिबल इन नेचर बट डू नॉट सपोर्ट द कंबस्टिबिलिटी. ओके, रॉबर्ट बॉयल ने ये बताया था हाइड्रोजन गैस के बारे में कि ये कंबस्टिबल तो है नेचर में बट इट डज नॉट सपोर्ट एनी कंबस्टिबिलिटी. ओके, द नेक्स्ट इज resemblance with alkali metals. As we have discussed in the previous slide that hydrogen has some properties which are resembling with alkali metals. Let's see what are those properties. The first one is electronic configuration. Like alkali metals, hydrogen also has one electron in its outermost shell. So that is why alkali metals का electronic configuration and hydrogen का electronic configuration बिल्कुल same होता है. Okay. The next is ion formation. Like alkali metals, hydrogen also loses one electron to form positive charge. जैसे कि alkali metals में जब उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है वो उसको हमेशा दूसरों को देने की कोशिश करते हैं, लूज़ करते हैं अपने पास से. जब वो लूज़ करते हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. वैसे ही हाइड्रोजन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज आ जाता है. द नेक्स्ट इज वैलेंसी. हाइड्रोजन और alkali metals की वैलेंसी 1 होती है. Next is reducing character. Like alkali metals, hydrogen is also a good reducing agent. The next is combination with non-metals. Like alkali metals, hydrogen combines with chlorine, oxygen, sulfur, etc. to form compounds. Okay, like when hydrogen reacts with chlorine, then it forms HCl. When it reacts with oxygen, it forms H2O. When it reacts with sulfur, it forms H2S. Okay, hydrogen sulfide. Okay, so like alkali metals also reacts with the non-metals and hydrogen also reacts with non-metals. The next is burning. Whenever hydrogen burns with oxygen or reacts with oxygen, it
यूज टू गिव इट्स ऑक्साइड फॉर्म, हाइड्रोजन का ऑक्साइड फॉर्म जो होता है वो हमें रिजल्ट में मिलता है, दैट इज वाटर, H2O. ओके, next is resemblance with halogens. Some properties are also resembling with halogens. The first one is electronic configuration. Like halogens, hydrogen is also one electron short of its nearest noble gas. क्योंकि जैसे कि हैलोजेंस में क्या होता है, उनके इलेक्ट्रॉनिक लास्ट वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और उनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपने आप को ऑक्टेट अपने मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए. वैसे ही हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो डुप्लेट रूल को पूरा करने के लिए उन्हें भी एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, यानी 2 करने के लिए उन्हें भी, हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हैलोजन के जो भी फ्लोरीन क्लोरीन जो भी एलिमेंट्स हैं उनको भी एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, ठीक है. The next is valency. Hydrogen and halogens require 1 electron to complete their duplet or octet respectively. Okay. The next is ion formation. जैसे कि आप हैलोजेंस जो होते हैं जैसे कि फ्लोरीन क्लोरीन, वो क्या करते हैं, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास में, तो वो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं अपना 8 कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, तो उनके ऊपर में 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं सॉरी, तो उनके ऊपर में एक नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं किसी से अपने आप में 8 करने के लिए. एज आई टोल्ड यू, फ्लोरीन को जो होता है उसके वैलेंस शेल में जो होता है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वैलेंस शेल यानी सबसे आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ नंबर्स होते हैं पर वैलेंस शेल में क्या होता है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए. तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगता है तो फ्लोरीन के ऊपर में क्या हो जाता है, एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है. वैसे ये हाइड्रोजन जब एक इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसके वैलेंस शेल में, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन मांगता है अपने आप को 2 करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, तो इसके ऊपर में भी क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज आता है किसी से जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है. तो जैसे ही हाइड्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है, वैसे ही हाइड्रोजन के ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज आता है. जब हाइड्रोजन मांगता है किसी से 1 इलेक्ट्रॉन तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा, जब किसी को डोनेट करता है 1 इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज आता है. ओके, द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर. Like halogens, hydrogen also is a non-metal and shows electronegative character. Okay, the next is atomicity. Like halogens, hydrogen also exists as a diatomic molecule. जैसे कि आपके जितने भी halogens हैं वो हमेशा diatomic, उसकी atomicity diatomic होती है, यानी not fluorine, Fl नहीं होगा, F2 Cl2 आपका ब्रोमियम हो गया, Br2 हो गया, ठीक है. फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये सब कितने क्या होते हैं, हमेशा इसकी एटॉमिसिटी 2 होती है. वैसे हाइड्रोजन की भी एटॉमिसिटी हमेशा 2 होती है. ओके, यह फ्लोरीन का F होगा सिर्फ फॉर्मूला, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन Fl बट इट विल बी नॉट, सिंबल सिर्फ F होता है फ्लोरीन का. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिसिटी. तो एटॉमिसिटी क्या होता है, जैसे कि हैलोजेंस के जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनकी एटॉमिसिटी 2 होती है, वैसे ही हाइड्रोजन की भी एटॉमिसिटी 2 होती है. तो ये दोनों मैच कर रहे हैं प्रॉपर्टीज. ओके, द नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स. हाइड्रोजन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स सच एज CH4 यानी मीथेन हो गया, ठीक है ना, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है. तो ये ऐसे ही एक्सेट्रा और भी हैं. तो जो कोवेलेंट हाइड्रोजन जो होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करता है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. द नेक्स्ट इज डिस्कवरी एंड अकरेंस. कुछ हम लोगों ने ये चीज़ें पहले भी डिस्कस कर ली हैं, डिस्कवरी क्या है हाइड्रोजन की. So let's again revise it. Henry Cavendish discovered hydrogen gas in 1776. Robert Boyle rediscovered the production of hydrogen gas. Anthony Lavoisier named the discovered gas as hydrogen. Hydrogen appears to be the most abundant element in the universe. 90% mass of the sun is hydrogen gas. Most of the stars are of hydrogen. On Earth, it is very less in amount, near about 0.88%. Okay, the next is preparation of hydrogen. Now we are going to see how hydrogen gas is prepared. The first one is from water. Water से कैसे hydrogen gas को हम prepare करते हैं. Okay, तो जब भी water आपके
मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन कोल्ड वाटर, जब भी कोल्ड वाटर के साथ में जब किसी मेटल का रिएक्शन हम करते हैं तो रिजल्ट में क्या हमें मिलता है, सी स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इट डिकम्पोज द कोल्ड वाटर एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ओके, जब कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो वाटर को क्या करता है, वो कोल्ड वाटर क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है, यानी ब्रेक कर देता है, ठीक है। एंड उससे क्या होता है, हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। अब वाटर का फॉर्मूला तो आपको पता है, H2O होता है। डिकम्पोज करना यानी ब्रेक करना, तो ब्रेक कर देते हैं, ऑक्सीजन अलग हाइड्रोजन अलग, तो हमें हाइड्रोजन गैस हमें मिल जाती है, ठीक है। नाउ सी विद एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू शो यू। कोई भी स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल में जैसे हम पोटाशियम ले लेते हैं, तो जब भी हम पोटाशियम का रिएक्शन वाटर के साथ में करते हैं तो हमें क्या करता है, ये जब कोई मेटल क्या करेगा, इसको आपको वाटर को क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, ठीक है। तो डिकम्पोज कैसे करेगा, इसको ब्रेक करेगा और आपका ये बन जाएगा KOH एंड प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी जो होगी वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना। KOH इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, 2K + 2H2O गिव्स 2KOH H2, ठीक है ना। तो जब भी कोई भी मेटल आपका किसी भी वाटर के साथ में, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी मेटल हमेशा वो मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस तो देगा ही देगा, प्लस आपको एक साथ उसके साथ में आपका एक और प्रोडक्ट मिलेगा जो कि हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है उसका, ठीक है ना। आप सोडियम के साथ भी देख सकते हैं, जब Na जो होगा वो H2O के साथ में रिएक्ट करेगा तो आपको NaOH + H2 ब्रेक करेगा वाटर को, H2 हमें मिल जाएगा और Na जो होगा वो एक हाइड्रोजन जो होगा बाहर चला जाएगा, लिबरेट एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन जो होगा वो Na के पास में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका बैलेंस कर लीजिए, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो दिस वे आप कैल्शियम के साथ भी देख सकते हैं इसको। तो जो भी आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होंगे वो कभी भी अगर रिएक्ट करेंगे किसी कोल्ड वाटर के साथ में तो हमेशा हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इवॉल्व होती है, ठीक है। तो जो जो मेटल होता है वो हमेशा क्या करता है कि ओ के साथ में कंबाइन होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो एक क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो आपकी इवॉल्व हो जाएगी, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन स्टीम। अब कोल्ड वाटर के साथ में आपने रिएक्शंस देख लिया, द नेक्स्ट इज विद स्टीम ऑल्सो। ओके, एक्चुअली होता क्या है कि समटाइम्स सम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो कि नेचर में लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और वो कोल्ड वाटर के साथ में कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। सो दे नीड स्टीम टू गेट डिकम्पोज्ड। इसलिए जब वो क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, कुछ डिकम्पोज नहीं करते हैं, तो क्या करता है उस समय हम स्टीम का यूज़ करते हैं। वाटर का ही फॉर्म होता है, यानी हीटेड वाटर होता है वो, टू गेट डिकम्पोज उस मतलब जो आपका वाटर होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए। एंड इन रिजल्ट दे फॉर्म ऑक्साइड्स। रिजल्ट में क्या मिलता है हमें, ऑक्साइड्स मिलते हैं, हाइड्रोक्साइड्स नहीं। इसमें हम क्या देख रहे थे, हमें हाइड्रोक्साइड्स मिल रहे थे, OH मिल रहा था ना, अब इसमें हमें ऑक्साइड्स मिलेंगे, ठीक है ना। देखते हैं किस तरीके से, जैसे कि कुछ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे कि मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम का जब आप रिएक्शन कराएंगे, हॉट वाटर आप कह सकते हैं या स्टीम कह सकते हैं, स्टीम के साथ में, तो आपको रिजल्ट में MgO + H2O मिलेगा, ठीक है ना। H2 ब्रेक करेगा इसको, ठीक है, तो H2 मिलेगा और MgO, ठीक है, हमें ये चीज़ मिल गया। एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं, एल्यूमिनियम + H2O, तो आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड + हाइड्रोजन गैस देगा। जिंक के साथ करवाते हैं तो जिंक + H2O गिव्स जिंक ऑक्साइड + हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो आप किसी भी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ में अगर हमारा रिएक्शन होता है तो कोल्ड वाटर रिएक्ट करके वाटर को डिकम्पोज नहीं करता, हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, इसलिए वाटर को क्या करते हैं, हम स्टीम कर लेते हैं, यानी गर्म कर लेते हैं, और तब आपका वाटर जो होता है वो ईजिली मेटल से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से डिकम्पोज हो जाता है और हमें हाइड्रोजन गैस दे देता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट इज हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स एंड अल्कलीज।
अब हाइड्रोजन गैस एसिड्स के साथ में क्या होगा, एसिड्स जो होते हैं आपको पता है कि एसिड्स आपके एसिड बेसिस के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सर्टेन ऐसे एसिड्स होते हैं कि कभी भी आपके जब भी हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म सॉल्ट, सॉरी किसी एसिड्स जो होते हैं कभी भी आपके मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब मेटल्स आपके हाइड्रोजन एसिड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं तब भी हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है और एक साथ में सॉल्ट भी मिलता है, ठीक है। तो हमें ये स्लाइड में हम देखेंगे किस तरीके से हाइड्रोजन हमें एसिड्स के साथ में मिलता है। तो एसिड्स के साथ में क्या, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है, ठीक है, और एक सॉल्ट मिलता है। जैसे कि आपका एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है Na, सोडियम प्लस HCl। HCl आपका एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे कहते हैं। एसिड हमेशा आपका कैसा रहेगा, डाइल्यूट फॉर्म में रहेगा। कैसे रहेगा, डाइल्यूट फॉर्म में, ठीक है। एसिड आपका H2SO4 भी है या फिर HCl भी है। इन दोनों में से आप कोई सा भी एसिड ले सकते हैं। जब भी कभी इसी आपके डाइल्यूट H2SO4 या HCl के साथ में यानी एसिड्स के साथ में कोई भी मेटल अगर रिएक्ट करेगा तो हमेशा हमें एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो मिलेगी, ओके। एल्कलीज के साथ में क्या होता है कि जब कभी मेटल जो होता है रिएक्ट करता है, अब एल्कलीज एक्चुअली होता क्या है, एल्कलीज आपके बेसेस होते हैं। एल्कलीज को हम क्या कहते हैं, बेसेस, ठीक है। तो बेसेस के साथ भी सेम वही कंडीशन है कि बेस कभी भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, एल्कलीज कभी भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही मिलती है, ठीक है। सो व्हेनेवर मेटल रिएक्ट्स विद एसिड और बेस ऑलवेज वी गेट टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कभी भी एसिड हो चाहे अल्कलीज यानी बेसिस हो, मेटल अगर रिएक्ट कर रहा है उनके साथ में एसिड या बेसिस के साथ में तो हमेशा हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी। एग्जाम्पल, जिंक प्लस NaOH, जितने भी आपके बेसिस होते हैं उनमें हमेशा OH प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो NaOH के साथ में जब रिएक्ट करेगा तो हमें रिजल्ट में सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस जो होगी वो मिलेगी, ठीक है। क्लियर? I hope this is clear to you. In this slide only this much. In the next slide we are going to discuss the laboratory method of hydrogen. Thank you. God bless you.